Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you to yet another session of 11th Standard Economics. आज पहली बार में वापस बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. Good morning. There should be the energy, there should be charge. Yes, once again, very good morning, boys and girls. I welcome you to the very next session of 11th Standard Economics. हमने चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है पॉपुलेशन. पॉपुलेशन ये चैप्टर हमने शुरू किया है. अपने जिंदगी में कोई टेंशन है क्या? आप में से किसी की जिंदगी में कोई टेंशन है क्या? सब मजे में है, ऑल गुड, ऑल सेट, है ना? तो एकदम अच्छे से बैठो, हंसते हुए बैठो, स्माइल करो विद अ बिग स्माइल, है ना? राइट? बी हैप्पी. हंसते हंसते खुश रहते हुए पढ़ना है अपने को. कोई परेशानी है किसी की जिंदगी में तो मुझे बताओ. किसी की जिंदगी में कोई परेशानी है? हाँ हाँ, उसकी जिंदगी में जब तक पिल्लू है तब तक परेशानी है. जिस दिन पिल्लू उसको छोड़ेगी उस दिन उसकी परेशानी खत्म होगी, तब तक नहीं खत्म होगी. So my dear friends, we have started discussing about population. We have started discussing about population. In my last session, I have explained you two terms. One was called as the birth rate, another was called as the death rate. The number of birth per thousand of the population is called as birth rate. The number of death per thousand of the population is called as death rate. In India, population growth is very high. In India, population growth is very high. We see high birth rate and low death rate. I explained you all three situation. अगर बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो तो पॉपुलेशन ग्रो नहीं होता. अगर डेथ रेट ज्यादा है, बर्थ रेट कम है तो नेगेटिव ग्रोथ होता है. लेकिन जब बर्थ रेट हाई होगा, डेथ रेट लो होगा, तो इसके वजह से जो पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगा. In yesterday's discussion, we have started discussing about the various causes of high birth rate, starting with the first point, that was illiteracy. Even if you have studied your 10th standard, even if you will be completing your 12th standard, even if you will be completing your graduation, you will still be called as educated illiterate. Why? Due to many things we do. कचरा कहीं भी फेंकना, जोर जोर की चिल्लाना, क्लासरूम में गाने बजाना. These are signs of an educated illiterate. They are sign of an educated illiterate. You should understand where we are sitting, which is the environment. You can sit down. Break is for just relaxing down, sitting, talking to friends, discussing things. डिस्कशन का अपना एक पॉइंट फिक्स रहता है, उसके आगे डिस्कशन ही कभी नहीं बढ़ती. थोड़ा सा दुनिया की, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, इन सब चीज़ों की भी डिस्कशन किया करो थोड़ा सा, मेरे स्टूडेंट्स हो. चलिए कोई बात नहीं. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट, इलिटरेसी. इंडिया में इलिटरेसी का जो रेट है वो काफ़ी कम है. Now if we classify the literacy rate between male and female, we get to know that the illiteracy rate is more in women or female, and ultimately that is the reason why we have high population or high birth rate. I was explaining you the situation yesterday that hardly there are 2-3 girls who are allowed to complete their education till post graduation, and hardly a single girl in 100, not in 100, in 1000 you can say, who will be allowed to do job before her marriage. But out of 100, around 50-60 girls get married immediately after their 12th standard. And when they get married at such an early age, there is possibility of having more number of children. This is not the case with West. Their girls, even girls get married after the age of 40-45. Normally retirement is 60. So during that span, normally they have is 1 or 2 kids. Because at the age of 18, whether it be girl or whether it be boy, they really are not mature to understand things. They are really not mature to understand things. You all are teenager. Why do you call you teen? Because this teenage तुमसे बहुत सी चीज़ें करवाता है जो तुम्हें करनी नहीं चाहिए, और तुम ना समझ होते इसलिए टीनेजर कहते हैं तुम्हें. तुम ना समझ होते हो इसलिए टीनेजर कहते हैं. अब जो लड़कियां 18 साल की उम्र में शादी करते हैं उनको कुछ समझ तो होती नहीं. बेचारी 18 से लेके 21 साल होने तक वो साड़ी संभालने में और साड़ी पहनने में ही परेशान रहती है. ये फैक्ट है. वो बेचारी 18 साल में जब शादी करती है तो उसके पहले 3 साल तो साड़ी संभालने में और साड़ी पहनने में जाती है. कैसे पहनते हैं, कैसे ट्रैप करते हैं, वो समझने तक तो एक हाथ दूसरा बच्चा हो जाता है. फैक्ट है, हंसने वाली बात नहीं है. आई सेड यू, वी आर लर्निंग. जब पढ़ रहे हैं तो साफ साफ बात करनी चाहिए, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है. And when a girl gets married at such an early age, there is possibility of having more number of births.
That is the reason we need to increase the age. What did I say? India can be a developed country only if either of the two possible ways. हमारे यहाँ सिचुएशन कैसी है? The growth of the population is greater than the growth of the economy. एक तो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट को बढ़ाओ या फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम करो. इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए सारे ठोस कदम मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ पॉपुलेशन ग्रोथ को भी अगर कंट्रोल कर सके तो अपने आप हम जीत जाएंगे. इसलिए मोदी जी ने नए बिल में लड़कियों की एज 21 की है. लड़कियों की एज 21 की है, क्योंकि अगर लड़कियों की एज 21 कर दी, इसका मतलब सारी लड़कियों को ग्रेजुएशन पढ़ने का अपने आप अधिकार मिल जाएगा. 12वीं होने के बाद जब 18 साल की लड़की होती है तो बहुत से पेरेंट्स उसकी शादी करवा देते क्योंकि उसको पढ़ाना नहीं होता. अब जब 21 साल हो जाएगी तो 3 साल घर पे तो लड़की को नहीं बैठाएंगे. तो हो सकता है कि उन 50 लड़कियां जिनकी शादी 18 साल में होती है उसमें से एटलीस्ट 30-35 लड़कियों को तो चांस मिले कि वो अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर सके. जब तक आप ग्रेजुएट होते हो तब तक मैच्योरिटी आ जाती है, आप टीनेज से बाहर निकलते हो. विल बी एज ऑफ 21 और 21 तक एक मैच्योरिटी आ जाती है, अपने आप आ जाती है. नाउ यू सी एट दिस पर्टिकुलर एज यू आर डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स फॉर एवरीथिंग, आंट यू? लेट्स नॉट टॉक अबाउट बॉयज, लेट टॉक अबाउट गर्ल्स, क्योंकि आपकी एज 21 है ऑफ मैरिज, so there is no point in talking. You all are 16 now, okay? 15, 16, whatever. At this particular age, do you really think it is possible to take any of your decisions regarding your life without your parents? The answer is no. Will it be possible? The answer is no. 2 years later, after your 12th standard, आपको बोला है कि आपको शादी करके पराए घर जाना है, घर संभालना है, गृहिणी की जैसे जैसे आपकी मम्मी संभालती है. Does anyone of you think you're capable of doing that? The answer is no. But if you're forced to do that, you don't have any other option. But if you'll be forced to do that, you don't have any other option. And ultimately you get married at 18. Then there is more possibility of birth coming at this particular age. That is the reason why we seriously need a change in the age of marriage of girls from 18 to 21. So the number of girls completing their graduation will increase, and as the literacy rate will increase, automatically the growth rate of population will decline. Slowly the economic growth will increase, and steadily we can have a good quality of life for people living in country. Are you getting my point? समझ रहा है? खोपड़ी में घुस रहा है? घुस रहा है क्या? तो पहला पॉइंट क्या है? कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट, इलिटरेसी. पहला पॉइंट है इलिटरेसी. सेकंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज. क्या करना है? तेनु घोड़ी के न चढ़ाया भूतनी के, तेनु दूल्हा के न बनाया भूतनी के, भूतनी के है भूतनी के, तेनु घोड़ी के न चढ़ाया भूतनी के. तो दूसरे कोई तो शाहरुख खान के पेज में आता, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना. एक तो बॉलीवुड के गानों ने बेड़ा गर्क लगाया है. मतलब जिसकी शादी करने की इच्छा भी ना हो, गाने सुन सुन के शादी करने लगे. वो तो नसीब है, कुछ गाने अच्छे भी आने लग गए शादी के ऊपर. जोर का झटका है जोरों से लगा, हाँ लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सजा, हाँ सजा. कम से कम कुछ नौजवान इन गानों को सुनकर प्रेरित होकर रुक जाएंगे कि शादी ना करें. क्या बोल रहे हो सर? क्यों घर बर्बाद कर रहे हो बच्चे का? बसने जा रहा है, बसने. तो तुमको क्या तकलीफ है ना? मुझे कोई तकलीफ नहीं भाई. तकलीफ पॉपुलेशन को है, तकलीफ दिनेसर को नहीं है. तकलीफ किसको है? पॉपुलेशन को है. बात समझ रहे हो? इंडिया में देयर इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज. हंसी की बात नहीं है, गौर फरमाओ. लेट्स से यू लिव इन अ कॉलोनी, राइट? आपके कॉलोनी में कोई एक ऐसा घर है जहाँ पे कोई मेल है, ए मेल व्यक्ति, अ पर्सन, जिसकी शादी अब तक नहीं हुई है. यू योरसेल्फ सी, लोगों का उसकी तरफ देखने का नजरिया कैसे हो जाता है ना? लोगों से कैसे कुछ तो भी है ना? कुछ तो भी इसमें फॉल्ट है. वो बोलना शुरू कर देते उसके बारे में. मान लो कोई लड़की है, 30-35 साल की हो गई है, उसने शादी करने का निर्णय लिया क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, करियर बनाना चाहती थी, सब कुछ. वो उसमें भी कुछ फॉल्ट ढूंढने का शुरू कर देते. करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? सच. क्यों?
क्योंकि हमारे यहाँ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज है. व्हाट इज यूनिवर्सलाइजेशन? यूनिवर्सल ट्रुथ. ये सच है कि तुम पैदा हुए तो तुम्हारी शादी होके रहेगी, है ना? बाकी मालूम नहीं, शादी तो होके रहेगी. अब शादी होने के बाद आगे बच्चे और पॉपुलेशन तो बढ़ना ही है, कौन सी बड़ी बात है? सो देयर इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज. बॉलीवुड के आधे गानों ने तो बेड़ा गर्क किया है. मेहंदी लगा के रखना, साजन जी घर आए, और कौन से गाने भाई? हाँ, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. उधर दुल्हन दीवानी, इधर दूल्हा दीवाना, बस दोनों दीवाने, दोनों दीवाने. हंसने वाली बात नहीं, साला हमारे मारवाड़ी में तो और भी हालत खराब है. कवड़ा कवड़ा 21 साल 22 साल का हुआ नहीं लड़का, उसकी शादी करा देते, फटफट झटपट निपटा देते, सेटल करते. भले वो लड़का कुछ ना करता हो, लेकिन सेटल करते फटाफट. ये सारे बहुत प्रॉब्लम्स है. यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज इज अ वेरी बिग टास्क. एम आई रॉन्ग सेइंग दिस? बॉयज के लिए थोड़ा सा, अभी 3 साल तुम्हारा लीगल ही नहीं. गर्ल्स, तुम अभी 10वीं कक्षा ही पास किए हो ना? नाही, तुमने 8, 9, 10 से ही घर वालों के ताने सुनने शुरू कर दिए. आता तुझं लग्न करावं लागतं ग बाई, पोरगी मोठी झाली आहे, तिचं लग्न करावं लागतं, है ना? एखाद दूसरी बार. मुलगी नॉर्मली ग्रामीण में और में जो थोड़े कम पढ़े लिखे, वहां पे यही होता है. 10वीं होते उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता करने लगती है. वो ये नहीं सोचते कि उसका करियर बनाऊं, उसे इंडिपेंडेंट बनाऊं, उसे कमाने के काबिल बनाऊं, वो नहीं. शादी का टेंशन शुरू हो जाता है. तो ये प्रॉब्लम बहुत है. अब ग्रामीण में क्या होता है समझने की कोशिश करो. अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज. द गर्ल्स टेंड टू गेट मैरिड टू अ बॉय हु इज ऑलरेडी ऑफ 27-28 एज. नॉर्मली जो सेटल, अभी देखो 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का अगर शादी करते तो कैसे लगे? छोटी सी उम्र में परणायो रे बाबू सा, बालिका वधू लगेंगे. मतलब पार्ले जी बिस्कुट लाया तो आधा दुल्हन खाएगी, आधा दूल्हा खाएगा, है ना? पार्ले जी बिस्कुट अगर लाया तो आधा दूल्हा खाएगी, आधी दुल्हन खाएगी, क्योंकि दोनों भी नहीं कमाते भाई साहब. 21 साल की उम्र में लड़का तो कमाने से रहा, क्योंकि बीकॉम ग्रेजुएट को 5,000 के ऊपर नौकरी तो कोई देता नहीं अपने को, है ना? इंजीनियरिंग को तो 4 साल लगते हैं. इंजीनियरिंग कंप्लीट ही 22 साल में होती है. 21 साल में शादी करे तो वो इंजीनियरिंग भी कंप्लीट नहीं करता लड़का, क्योंकि उसको ये दिमाग में गाने चल रहे होते हैं ना शादी के बाद, कहने को जश्न बहारा है ना? वो खुद को जोधा अकबर समझने लगता है. हमारे जैसे कितनी ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी है ऐसे, है ना? तब नॉर्मली समझ लेगा 18 साल की लड़की है और 21 साल का लड़का है, सो दे कुड मेक एन आइडियल पेयर. 2-3 साल का फर्क ठीक है, 2-3 साल का फर्क ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है, 18 साल की लड़की को कुछ लेना देना नहीं, वो तुम्हारा आधा पार्ले जी खाने वाली है. लेकिन वो जो 21 साल का लड़का है वो भी पार्ले जी के ऊपर कमा नहीं पाता कुछ. 21 साल के लड़के क्या ही कमा लेंगे? एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? 21 साल का लड़का नॉर्मली 5-10 हजार से ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं कमा सकता, क्योंकि उसमें उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है जिम्मेदारियों की, सब चीजों की. सर आपको बड़ा पता है, मेरी शादी 22 साल में हुई ना, आधा पार्ले जी मैंने भी खाया है, आधा पार्ले जी मैंने भी खाया. फैक्ट है, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट. बहुत अनुभव है अपने पास, तो आधा पार्ले जी मैंने भी खाया है. अनुभव के बोल है ये सारे, यू नो, एक्सपीरियंस टॉक्स, यू सी, दैट इज द रीजन. सो आधा पार्ले जी मैंने भी खाया है, आधा पार्ले जी मैम ने खाया है, शुरुआती तौर में. तो बात ऐसी है कि 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का अगर एक आइडियल पेयर भी बन जाए, लेकिन 21 साल का लड़का कुछ कमाता नहीं, एक पति इंडिपेंडेंट नहीं है, पत्नी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों को पार्ले जी मिल रहे हैं, पापा दे रहे हैं, पार्ले जी खा रहे हैं, जिंदगी चल रही है. फिर करके करे क्या? लोक संख्या में बढ़ोतरी करते और कुछ नहीं करते. ये फैक्ट है, हंसने वाली बात नहीं, इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट. अब नॉर्मली क्या होता है ग्रामीण में, जब कभी भी शादियां होती है, आइडियली व्हाट यू सी
कि लड़के की उम्र 25-26 से ज्यादा होती है जो शादी होती है तब। सही बोल रहा हूँ? 25, 26, 27 ऐसा होता है। और लड़की की उम्र होती है 18 साल। कितना फर्क है? मिनिमम 10 साल, 8 से 10 साल का मिनिमम फर्क रहता है। रहता नहीं रहता रे? रहता नहीं रहता है? कहीं भी देख लो, आपके घर में जो ग्रामीण से है, आपके कोई सिस्टर है जिसकी शादी 18 साल में हुई, आपके दाजी यानी जीजा जी की उम्र पूछ लो, कम से कम 8 साल तो बड़े रहेंगे ही रहेंगे। अब मुझे बात बोलो, वो जो 18 साल वाली लड़की है और 27-28 साल वाला, 26-26-27 साल वाला लड़का रहेगा, वो सर वाली फीलिंग नहीं आएगी क्या? ये मेरे सर है, बड़े हैं मुझसे 7-8 साल। और नॉर्मली जब इतना एज गैप हो जाता है, दैट मेल टेंड्स टू डोमिनेट द फीमेल। और जब कोई 18 साल की लड़की बंधन में बनती है किसी लड़के के साथ जिसकी उम्र 25 साल से ज्यादा है, जिस दोनों में 7-8 साल का फर्क है, सो देयर विल ऑलवेज बी डोमिनेंस ऑफ द मेल। उस 18 साल की लड़की को पार्ले जी के अलावा कुछ दिखते नहीं बेचारी, सो इट विल ऑल बी लेफ्ट टू दैट पर्टिकुलर मेल। और ग्रामीण में वो मेल पुरुष जो कमाता है 27-28 साल का, जिसकी बीवी 18 साल की है, उसके लिए बीवी मतलब सिर्फ शादी करना, बच्चे पैदा करना, घर संभालना, रोटी करना, कपड़े धोना, बस इसके लिए ही है। हजारों में, 10,000 में, लाखों में एक आध मिलेगा जो बोलेगा नहीं तू भी आगे पढ़, तू भी सेटल हो, मैं पढ़ रहा हूं तू भी पढ़। कितना रेयर होता है ये? कितना रेयर होता है? फैक्ट बोल रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, ये जमीनी हकीकत है, हंसने वाली बात नहीं है। नथिंग टू लाफ अबाउट, इट्स अ फैक्ट। Go to ground zero. These are fact. I have seen these all things. I have faced all these things. I have seen also all these things. हाँ, बस इतना नहीं कि मैडम की उम्र 18 साल नहीं थी, डोंट वरी, उन्होंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। सो बात ऐसी है, क्या हुआ बेटा? पार्ले जी गिर गया, लो उठाओ। तो बात ऐसी है, थोड़ा आराम से, यस। तो बात ऐसी है, ये हकीकत है। इन बिटवीन जब पुणे से आया तो 4-5 साल के दौर में मैं अड़द दुकान का काम करता था गंगा खेड़ में, हमारी काफ़ी बड़ी दुकान है वहाँ पर। तो वहाँ पर लगभग 400-500 गांव के लोगों से, युद्ध से, वहाँ के परिवारों से मेरा इंटरेक्शन होता था। और ये चीज़ें लाइव मैंने देखी है। 18 साल की लड़की है, 27-28 साल का लड़का है, दोनों पति पत्नी है, 10 साल का फर्क है। इतना क्या, मेरा एक कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता बहुत है सर के, चिंता मत करो, बहुत सारे कार्यकर्ता है। उसने जोरों शोरों से मस्त मेरे को साकर पुड़े लाया, हे या ते या, ऐसा वैसा सब कर लिया। उसकी उम्र होगी कुछ 25-26 साल, और सब चीज़ें ठीक हो गई। और कल अब एंगेजमेंट है, सुबह सुबह फोन आता, माझा खूप डिसमूड झालाय, जाऊ द्या लग्न आपण कॅन्सल केले। म्हणलं का रे, का केलं लग्न कॅन्सल? नाही तिचं वय 16च भरायलेत म्हणे, ते कोणीतरी गाडी केली, कंप्लेन केली। फैक्ट है, फैक्ट है। मैं तेको नहीं समझता 18 साल के पहले कानूनी नहीं है? कौन पूछता वाले? गांव में कोई नहीं पूछता। ऐसे बहुत सी शादियां होती है, सिर्फ कैसा मैं थोड़ा पॉलिटिकल में हूं तो विरोधकों ने गाड़ी कर दी, बता दिया। नहीं तो लड़कियों की शादी आज भी ग्रामीण में चोरी छुपे 16 साल में भी होती है। अब इनमें से किसी लड़की की शादी हो गई, किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, तो कौन अधिकारी जाके चेक करने वाला? भाई इंडिया में रोजों लाखों शादियां होती है, हजारों डाइवर्स होते हैं, किसको खाली पड़ा है कि जाके चेक करे कि लड़की का आधार कार्ड बता? कभी शादी में ऐसा हुआ है मैरिज वाले आए, बता आधार कार्ड दाखवा? कभी देखा है, कभी पूछा है? कोई नहीं आता। वो तो स्पेसिफिकली उसके केस में किसी ने गाड़ी कर दी तो वो हिम्मत नहीं किया। मतलब ऐसे कितने शादियां जो 16 साल की उम्र में भी होती है। आई हैव सीन इट लिटरली। जब 333 वेडिंग कपल्स की शादी उस नूतन ग्राउंड में की गई थी, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय जादव ने की थी, तो वी ऑल आर फैमिली, वो मेरे परिवार के एक मेरे बड़े पिता जैसे हैं। तो उनके उस कार्यक्रम में भी मैंने एक्टिवली काम किया था, मेरे पिताजी ने, हमने सभी लोगों ने, क्योंकि अच्छा कार्य था। रजिस्ट्रेशन के लिस्ट देखते वक्त, उन सब लोगों के साथ काम करते वक्त लिटरली 333 कपल्स की शादियां तो हुई, उसके साथ साथ लगभग 250 एंट्रियां कट की गई जहां पर लड़की की उम्र 18 साल से कम थी, लेकिन दैट पेरेंट्स डेलिबरेटली वांटेड टू गेट देयर गर्ल मैरिड इवन शी वाज नॉट 18। लगभग 250 एंट्रियां,
ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर 250 लड़कियां के पेरेंट्स खुद बोल रहे हैं कि हमारी बेटी की शादी कर दो, तो शादी हम 500 जोड़ों की हो जाती। 333 रजिस्ट्रेशन वाले को साफ साफ बोला साहब ने, बाकी काही कर, मुलीचं आधार कार्ड, मुलीचं बर्थ सर्टिफिकेट, मुलीची तपासणी, सगळ्या गोष्टी करायच्या, प्रॉपर रूट तक जाकर देखने का कि वो लड़की 18 साल की है या नहीं, क्योंकि एक सिंगल लड़की की भी शादी 18 साल से कम की हुई अगर वहां हो गई तो वो तो सब जाते, खासदार साहब भी जेल में जाते, सब जेल में जाते कैटरिंग के साथ। फैक्ट है, इट्स अ बिगेस्ट क्राइम टू डू। तो ये जमीनी हकीकत है। ग्रामीण में 18 साल की लड़कियां होती है, एंड इंडिया लिव्स इन विलेजेस, इट डजंट लिव इन सिटीज। इंडिया लिव्स इन विलेजेस, 65% ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस। एंड ग्रामीण में 18 साल की लड़की, 27-28 साल का लड़का, डू यू रियली थिंक दे वुड रियली बॉदर अबाउट फैमिली प्लानिंग? कुछ फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनके लिए प्राउड होता है, 3 मुली, 4 मुलं, 5, 6 है, चल रहा है। ये फैक्ट है। सो दिस पॉइंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज इज वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। समझ में आ रहा है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, यूनिवर्सलाइजेशन मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ। ये सच है कि तुम्हारी शादी होके रहेगी, ये सच है कि तुम्हारी शादी होके रहेगी। नेक्स्ट, एज ऑफ मैरिज। ये अभी पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया, इसको अलग से समझाने की जरूरत है? अलग से समझाने की जरूरत है क्या? नहीं। हमारे एज ऑफ मैरिज क्या है? फॉर गर्ल्स इट इज 18, फॉर बॉयज इट इज 21। तो मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू पुट डाउन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया कि लड़कियों की एज ही कर दी 21। तो लड़कियों की एज, उसके बाद भी बोल रहा हूं, उसके बाद भी 18, 19, 20 में लड़कियों की शादी होगी, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मैरिजेस कम हो जाएंगे, फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फर्क नहीं, कानून बनने के बाद फर्क पड़ता है, कानून होने के बाद फर्क पड़ता है। एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इट इज 18, फॉर बॉयज इट इज 21। बहुत टाइम है, 5 साल है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, इसे कहते हैं सन मेटा प्रेफरेंस। क्या कहते हैं हम? सन मेटा प्रेफरेंस, है ना। जैसे किसी भी परिवार में, मेरे खुद के परिवार में कुल दीपक का होना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि करता धरता अग्निकर्ता चिता को आग देने वाला सारा कौन है? बेटा है। बेटी तो पराई धन है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। भले उसमें हम पार्ले जी का कुछ भी कहा, तुझको सुखी संसार मिले। और ये एक्सेप्टेड फैक्ट है कि हमारे यहां फीमेल जो है वो पराया धन है। मतलब उनको कितना पढ़ाओ, कितना इंडिपेंडेंट कराओ, कितना जॉब करवाओ, अल्टीमेटली कमाने वाली किसके लिए है? वो अपने पति के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए। एक बार शादी हो गई, अब मुझे बताओ, इंडिया सिस्टम में को समझ में नहीं आता। अगर कोई लड़की, मान लो कोई माता पिता है, उनको 2 लड़कियां हैं, उनको 2 लड़कियां हैं। अब वो दोनों लड़कियां पढ़ लिख लेती है, जॉब करती है, कमाती है, सब करती है और इंडिपेंडेंट है। उनकी शादी हो जाती है और शादी होने पर अब 2 लड़कियां हैं, तो वो अपने अपने ससुराल चले जाएगी। अब घर पर कौन रह जाएंगे? अकेले माँ बाप, है ना। सच में बताना, आप तुम लोग समाज के बारे में समझते हो, इतने भी ना समझ नहीं हो कि नहीं समझते हो, थोड़ा बहुत तो समझ अब तुम में भी है। टीनेजर हो लेकिन 16 हो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा मैच्योरिटी है, लेकिन उतनी नहीं जरूरत, अपने को कम करो। तो बात ऐसी है कि 2 लड़कियां हैं, दोनों लड़कियों की शादी हो गई, माँ बाप अभी घर पर है, दोनों लड़कियों को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, जॉब करवाया, सब करवाया। अब दोनों की शादियां हो गई है। कितने बार ऐसा सिचुएशन आपने देखा है कि शादी के बाद लड़की अपने माँ बाप का घर चला रही है? अलाउड ही नहीं है। है क्या अलाउड? फैक्ट बोलो, अलाउड है क्या? मतलब वो दोनों लड़कियां जिनको उनके माँ बाप ने बनाया, जिनके माँ बाप ने उस काबिल बनाया, शादी के बाद उनकी पूरी इनकम कौन रखते हैं? ससुराल वाले। कौन रखते हैं? ससुराल वाले। डू यू रियली थिंक अ वुमेन कैन डेयर टू गिव मनी टू देयर पेरेंट्स फॉर देयर लाइवलीहुड? यस और नो? यस और नो? हाँ या ना? सन मेटा प्रेफरेंस। बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? बेटा।
क्योंकि अल्टीमेटली लड़की को कितना भी पढ़ाओ, कितना भी बड़ा डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाओ, लेकिन जब वो शादी होकर जाएगी तो ससुराल में कमाएगी। और बेटी जब एक बार ससुराल के वो चार आंगन में अटक गई, फिर वहां से तो कमा के हमको नहीं देने वाली, क्योंकि उसको उसको ससुराल चलाना, उसके परिवार चलाना, उसके वहां की फैमिली चलाना ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा रादर देन देयर पेरेंट्स। यस और नो? Out of 100,000 lakhs of situation, hardly there would be a situation where the girl is trying to earn and provide living to their parents. सही बात बोल रहा हूँ, गलत बात बोल रहा हूँ? सही है क्या गलत है? वो दोनों लड़कियां कमाने के बावजूद भी उसकी कमाई का पहला प्रेफरेंस उसे उसके ससुराल वालों को ही देना पड़ता है। भले ही जो माँ बाप उसको 25 साल तक बड़ा करते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, इस काबिल बनाते कि वो कमा पाए, उनको वो अपनी कमाई नहीं दे सकती। दे सकती है क्या? सच्ची बोलो, दे सकती है क्या? नहीं दे सकती। आपके घर में आपकी भाभी है, वो पढ़ लिखी है, कमा रही है, सब कर रही है, उनके माँ बाप को पैसे देंगे, तुम्हारे घर वालों को चलेगा? चलता च नहीं, किसी भी ससुराल में नहीं चलता, क्योंकि वहां पर क्या है? सास बहू और साजिश। क्या है? और सास तो ऐसा शब्द है, सांसें फूलने लगती है लड़कियों की ऐसे, सासू भाई, सास बहू और साजिश। सही बात बोल रहा हूं क्या मैं? क्या शादी के बाद कोई लड़की पढ़ी लिखी है, जो इंडिपेंडेंट है, जो कमा रही है? हाउ ऑफन डू यू सी दैट अ गर्ल हु इज मैरिड, हु इज इंडिपेंडेंट, हु इज अर्निंग, gives her entire salary to their original parents, not in-laws? Is it allowed? The answer is no. अब राघव की दोनों बहनें हैं, दोनों बहनों को अच्छा पढ़ा लिखा लिया, दोनों बहनें अच्छे बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, शादी हो गई। शादी होने के बाद अपने इनकम का जो भी हिस्सा वो इंडिपेंडेंटली देना चाहेंगे। क्या वो बड़े आजादी से अपने माँ बाप को दे सकते? नहीं दे सकते। इसीलिए सन मेटा प्रेफरेंस। बुढ़ापे का सहारा राघव बनेगा, है ना? बुढ़ापे का सहारा राघव बनेगा। बेटी कुछ दे ना ना दे, पराया धन है, कम से कम बेटा तो कुछ तो कमा के देगा, है ना? हो बेटे, हे बेटा कुछ तो कमा के देगा। दिस इज कॉल्ड एज सन मेटा प्रेफरेंस। फैमिली प्लानिंग क्या कहते थे? हम दो हमारे दो। तो इसके हिसाब से राघव पैदा नहीं होना चाहिए था। हम दो हमारे दो, है ना? माँ बाप और दो बहनें। दो बहनें होने के बाद भी वाई डिड देयर पेरेंट्स? इट्स अ फैक्ट, डोंट लाफ, इट्स अ फैक्ट। इवन इफ आफ्टर हैविंग टू गर्ल चाइल्ड, why did their really parents think about planning a third child? The answer is simple, son meta preference. बुढ़ापे में कोई तो भी अपना होना चाहिए। पेंशन, ये कौन है? बुढ़ापे की पेंशन। लड़के कौन है? बुढ़ापे की पेंशन। सही है क्या? बात सही है क्या? बात सही है? तो ये बुढ़ापे का पेंशन, इसीलिए उनके पेरेंट्स ने। अब मुझे बोलो, पॉपुलेशन के सचमुच में इनके माताजी पिताजी को पड़ी होती तो फिर वो थर्ड चाइल्ड के बारे में कभी सोचते ही नहीं, राघव कभी पैदा ही नहीं होता। वो तो थैंक यू है कि पैदा हुआ, क्योंकि मेरे क्लास में एडमिशन चाहिए थे मुझे, है ना? नहीं होता तो क्लास में एडमिशन और एक कम हो जाता। तो अच्छा हुआ तो पैदा हुआ। लेकिन बात क्या है? वाई डिड देयर पेरेंट्स थिंक? वाई डिड देयर पेरेंट्स थिंक फॉर द थर्ड चाइल्ड? द आंसर इज सिंपल, preference for a male child, son meta preference, nothing else. क्या मैं जो बात, अब इनकी बहनें जैसे शादी हो गई, शादी होने के बाद हर महीने कुछ पेमेंट अपने माँ बाप को दे सकती है क्या? अरे नहीं, क्यों नहीं दे सकती भाई? क्यों नहीं दे सकती? अलाउड ही नहीं है साला। हमारे हिंदू लॉ भी ऐसे हैं, कुछ कुछ चीजें अच्छी भी है, कुछ कुछ चीजें गलत भी है, कुछ कुछ चीजें अच्छे भी है, कुछ कुछ चीजें गलत भी है। दिस इज ऑल द प्रॉब्लम वी हैव। और कितना भी तुम सिर पटक लो, कितना तुम सिर फोड़ लो, चिल्ला चिल्ला चीख चीख के गला फाड़ लो, तो भी चीजें चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि सोशल कस्टम्स, सोसाइटी के नॉर्म्स, सोसाइटी का कल्चर इतने आसानी से बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है क्या? नहीं बदला जा सकता। भक्ति मैम जब थे, उनके पहले तक कभी किसी विवाहित लड़की, मारवाड़ी परिवार की लड़की को ड्रेस पहनकर बाहर घूमना अलाउड नहीं था। फैक्ट है ना? आई गेस फ्यू ऑफ द पेरेंट्स या फैमिलीज में से मेरे परिवार ये था पहली बार जो कहा कि भले ही तुम लड़की हो, शादी को तुम ड्रेसेस पहन सकती हो। ग्रामीण में आज भी लड़कियों को ड्रेस पहनना अलाउड है क्या शादी के बाद? क्यों नहीं अलाउड भाई?
कि कैदी है क्या, जेल के कि साड़ी पहनना चाहिए, वो रहता ना कैदियों को सफेद यूनिफॉर्म, वैसे वो साड़ी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म पहन के रहना। समझ में नहीं आती कोई बात। तो शुरुआत के कुछ परिवार में से मैम वो थे कि जो ड्रेसेस पहनना शुरू किए शादी के बाद। अब शादी के बाद ड्रेसेस पहनना शुरू कर दिए, उसमें भी लोगों का देखने का नजर, अरे सुन भाई के ड्रेस कैसे करते हैं बात। लेकिन बाद में ओवर द पीरियड नेक्स्ट 10 years थिंग्स हैव चेंज, नॉट इज वेरी ऑफन एंड कॉमन, इवन इफ द गर्ल इवन आफ्टर मैरिज वियर्स कुछ। अबे कौन सा बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब फूट रहा है, ड्रेस पहन रहे ड्रेस। वो तो आजकल ठीक है, पहले मानवाड़ी बहू यहां तक घूंघट लेती थी, चाय भी कैसे पीती थी, क्या वो आंधी, क्या एड़े लोग है, बेवकूफ है। इसलिए गाने भी थे, घूंघट उठा रहा हूं मैं। अरे बेवकूफ लोग, कौन सी दुनिया में जी रहे हो बे। आज भी राजस्थान में जाओ, ग्रामीण में जाओ, मेरे भदाना में मेरे ननिहाल है, मतलब नागौर जिला जो है, वहाँ भदाना करके एक गांव है, वहाँ मेरा ननिहाल है। अब गांव में कैसे होता है, एक रिश्ता है ना सबका रिश्ता। मान लो ये किसी गांव की भांजी है तो गांव के हर इसके मामा हो जाते है ना, वैसा। तो गांव में भदाना मेरे मामा का गांव है, तो सब वहाँ पे मेरे क्या हो गए, मामा मामी हो गए, है ना, सारे के सारे मामा मामी। तो नया नया था, मैं 9th-10th में, 9th में था, पहली बार राजस्थान गया तब। एंड आई एम क्वींस स्टूडेंट, यू नो, क्वींस इंग्लिश स्कूल। तो बात ऐसी थी कि राजस्थान गया मैं, राजस्थान जाने के बाद सबसे मिला। हमारे यहाँ तब तो महाराष्ट्र में रहते तो लोग इतने समझदार हो गए कि इतना कुछ जरूरी नहीं, लेकिन जब राजस्थान गया तो देख के परेशान हो गया मैं। अब सबसे मिल रहा था, मम्मी ने कहा ये नज़दीक के हमारे मामी हैं, गए, वो मामी बैठे ऐसे फर्स्ट क्लास नीचे मांडी डाल के, यहाँ तक घूंघट। कैसा है भानु, मेरे को समझ में नहीं आ रहा किसको बात कर रहे हैं। फिर मैं नीचे से देखा, मामी, अपन मामी को देख रहे। मैंने कहा ठीक है, शायद चांद को देखना अलाउड नहीं होगा, क्या पता। ये तेरी चांद बालिया, छे अवगढ़ है, या ऐसा हाल है, यहां तक घूंघट है भाई। बात भी करते ना ऐसे घूंघट के साथ, वो भूल भुलैया में वो आत्मा कैसे दिखाते मंजुली का, ऐसा लग रहा कोई भूत बात कर रहा अपने से, अंदर से खाली, सामने से अंदर से आवाज आ रही है खाली। क्या सेंस है, हमारी मर्यादा, हमारा ये, हमारा वो, हमारा ऐसा, हमारा वैसा, बेवकूफी की बात है। जो रिचुअल, जो कस्टम समाज के हिसाब से, धर्म के हिसाब से पालनी चाहिए वो पालो। अब जैसे मेरे समाज में नॉनवेज या मांसाहार खाना अपराध है, तो मैं नहीं खाता, ऐसी चीजों को मानो ना तुम, ठीक है, ये बात समझ सकता हूं मैं। ये घूंघट आते लेके क्या फायदा बे। मान लो तुम्हारे मैडम आए यहाँ घूंघट लेके पड़ा रहे, सब भाग जाएंगे। हाँ मैट्रेसेस समझता है सबको, मैडम ही देख रहे बार बार, अवगढ़ है, बहुत मुश्किल है। तुम, मैं और हम सब कुछ नहीं कर सकते। अरे पहले तो सती सिस्टम था ना, सती सिस्टम। हम वो मूवी देखते हैं, कौन सी है भाई वो, दीपिका पादुकोण वाली, ढिंटा का ढिंटा, क्या है वो पिक्चर के, वही है ना शायद, वही है ना, ढोल बाजे पद्मावत में है क्या, नहीं ना, सॉरी वो राम गाबड़े छपड़ो, वो रामलीला में है वो। उसमें पद्मावत में कौन सा गाना है, घूमर 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 घूमर, वो देखो उसमें दीपिका पादुकोण है, उसके अंदर दिखा दे, उसका घाघरा भी तो यहां तक लेती है, वही सिस्टम है, वही सिस्टम है। उसमें एक सीन है देखो, रणवीर सिंह क्या बोलता है कि मुझे रानी का चेहरा देखना है, तो वहीं पे तलवार निकाल लेते। क्या बोलता वो, हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, हमारी औरतें किसी को चेहरा नहीं दिखाती, है ना सीन, चेहरा हमारी औरतें किसी को नहीं दिखाती। हर जगह पे, वेदर इट बी हिंदू मुस्लिम डजंट मेक अ डिफरेंस,
आज मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहन के कंपलसरी है ना। अरे कोई चीज ठीक है, समाज में है तो फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मेरे को इसके आइडिया नहीं समझ में आते। हो सकता है बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल बातें हैं, शायद नुपुर शर्मा जैसे मेरे को भी धमकी आने लगे, इसलिए मैं आजकल लेक्चर बाहर अपलोड नहीं कर रहा, कोई देखे मुझे धमकी नहीं। एक तो ब्लैक कलर का बुर्का, इतनी कड़क धूप काले के दिन में 45 का टेम्परेचर, उतना काला बुर्का पहन के घूमो, मतलब अंदर से वाटर हीटर बन जाओ, ऐसा काम है। किसी का लॉजिक नहीं समझ में आता मेरे को। उसमें लास्ट में वो क्या करती है, दीपिका पादुकोण जौहर करती है, दैट इज नथिंग बट सती। तो सारी की सारी महिलाएं आग में कूद जाती है, दैट इज नथिंग बट सती। सती सिस्टम तो स्कूल में पढ़ा होगा ना, व्हाट इज सती सिस्टम? कि अगर महिला जिंदा है और उनके जिंदा होते उनके पति की अगर मौत हो जाती है तो उसी चिता पर उस बीवी को बैठकर खुद को जलाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज सती। इस सिस्टम को बंद करवाने का काम अंग्रेजों ने किया, कुछ तो ढंग का किया। चलो, इस सिस्टम को बंद करने का काम किसने किया? अंग्रेजों ने। किसने बंद करवाया ये सती सिस्टम? अंग्रेजों ने। कुछ एक आध दूसरे काम ज्यादा अच्छे, बहुत ज्यादा तारीफ नको करो, बहुत इतने ज्यादा अच्छे काम भी नहीं किए, थोड़े बहुत काम अच्छे किए अंग्रेजों ने। अपने पूरे भारत की जो आज अवस्था है इसके लिए सिर्फ अंग्रेज ही रिस्पॉन्सिबल है। अपने मेजर रिसोर्सेज यहाँ से निकाल कर लेके गए, आज वो सारे रिसोर्सेज यहाँ होते तो हमारे गरीबी गरीबी एक कंसेप्ट होता ही नहीं। तो सती सिस्टम निकालने का काम अंग्रेजों ने किया। क्यों भाई? उस औरत के जिंदा रहने को अधिकार नहीं है? मतलब पति मर गए तुम, अरे रिचार्ज थोड़ी है, हज का सोशल रिचार्ज, वो मर गया तो तू भी मर जा, टॉक टाइम खत्म, वैलिडिटी खत्म। अरे मतलब इंसान है कि रिचार्ज है? समझ में नहीं आया मेरे को। सही है गलत है? गलत है। यहां तक घूंघट लेने का कुछ लॉजिक लगता है क्या तुमको? कुछ लॉजिक लगता है क्या? जैसे उपवास करते हैं, बहुत लॉजिकल है। साइंटिफिकली कहा जाता है कि हमारा पेट हफ्ते में एक आध दिन तो भी खाली होना जरूरी है, तो हमारा डाइजेशन सिस्टम सब चीजें काफी अच्छे से चलते हैं। इसलिए मैं ट्यूसडे टू ट्यूसडे फास्ट करता हूँ, ट्यूसडे फास्ट करता हूँ, कुछ नहीं खाता, क्योंकि पेट खाली रहेगा तो वो अच्छा रहता है बॉडी के लिए। रोज बर्गर पिज्जा ये वो, उससे अच्छा उसको एक दिन आराम दो, एक दिन फैक्ट्री बंद रखो लोड शेडिंग के जैसे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती। मैं कोई गलत बात बोल रहा क्या? 18 साल में लड़कियों की शादी कर रहे हैं 28 के साथ, ये परदान बुरखान ये नॉनसेंस। और जब तक ये सब चीजें नहीं बदलेगी तब तक कोई चीजें नहीं बदल पाती। फिर से रूट कॉज इन सब चीजों की वजह क्या है? इलिटरेसी। लेकिन ऐसे भी नहीं कह सकते इलिटरेसी इज द ओनली रीजन, इट इज ऑल्सो द सोशल एंड कस्टम। डू यू थिंक राघव के माता पिता इलिटरेट है? वो तो काफी समझदार है, काफी होशियार है, तभी उसके पापा का उसका नाम है। उसके बाद भी राघव का सोचे, क्यों सोचे? सोशल कस्टम। बेटा चाहेगा, पेंशन कहां से आएगा? फिर बेटिया तो चले जाएगी, बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? ये फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट, जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, जिसे हम कहते हैं प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। अभी ओके? पॉइंट नंबर 1 to 4 क्लियर है? ऑल क्लियर? थैंक यू।